class-based components could access the state, the lifecycle methods, right? All those things. But after React 16.8, something was introduced which gave them this additional capability, which gave the functional components this additional capability, right? So this is known as the hooks. Okay. Okay. So what are hooks? Hooks are nothing but functions. Okay, JavaScript functions which provide functional components, additional functionality. Okay. Now, if you remember correctly, the use state that we're using, right? When in order to create, in order to create a use state. Do you guys remember use state from yesterday? Yes or no? Remember, right? We are importing it from here and we are using the use state. Remember, guys? The chat, you can let me know. Yes. Okay. You remember. So that use state is nothing but a hook. Okay. So I'll just give a, if you guys have forgotten, I'll just give a quick, summary how we used to do that. So let's say, you have a counter, right? Counter, set counter, and I want key initially it should start from 0, right? And if I want to display it here, you can display it, take counter, and display it, and if I want to increase it, right, I can increase it in any way. Let's say I want to increase it by clicking on a button. Increase by 1. Okay, what I'll do is I'll keep the on click equal to, when the on click happens, what should happen? The set counter should increase the counter by 1. Okay, set counter should increase the counter by 1. So when I click on it, you see the counter is increasing, by 1. This is clear. Everyone is clear about this use state. Yes. So what is function, right? I said that all the hooks are nothing but functions. Okay, all the hooks are nothing but functions. So the use state is a is a function which returns what? Can anyone tell me? What does it return? Array. Correct. This is an array, right? This is an array, and this array has 2 elements. First element is counter, second element is set counter. इसका नाम हम कुछ, like we can write the name as anything, but essentially the first thing that it returns is the actual state variable. Second thing that it returns is the setter function. Okay, this is the word use state. Okay, use state is very simple, to understand and do. Okay, so we discussed about use state. Okay, in yesterday also we discussed this extensively. Second one, which is very important also, is called use effect. Where this use state and use effect, no, you'll use in almost all your components, right? So you will pay close attention. Okay, so what is this use effect? Okay, so use effect is also a function, right? It is a hook, right? So it is just a function, and what it does, it is used to execute side effects. Okay, now what are these weird term that I said, side effects, right? What are side effects? So just to remind you, right, like what do we why do we use React? It is used for just showing the UI, right? Rendering the UI. So apart from rendering UI, if you have anything that you want to perform in some other in other way, right? Like आपका कुछ if you have some side effect that you want to perform, for example, which is not related to rendering the UI, right? Which is not rendering the UI. For example, you want to make a API call, right? Or you want to basically work with local storage, okay, or something, right? Anything which is not related to the what is the rendering of the UI, we generally put it inside the use effect. Okay, and we have certain conditions in which those use in which those side effects can run. Are you guys clear with the functionality? We look at the examples and everything, but are you guys clear with this? It is just a function, okay, which is just a function which React gives us, right? We'll import it from React only, and is used to execute the side effects.
What are side effects? Side effects can be as simple as the API calls, working with local storage and etc. Clear, everyone? Let me know in the chat. Clear. Okay. So, but I said that we'll import use state for use effect from the React only, right? So I've imported the use effect. Okay. अभी के लिए let us comment this one out. Okay. Let us comment this one out. This one also. Okay. So where do we put use effect? We put use effect outside the return. Okay. Just like use state, we put use effect outside the return. What it is a function, right? So we'll call it like a function. Now use effect takes in certain arguments, right? Just like use state takes in argument, right? Use state argument में क्या लेता है? Use state takes the initial value as the argument, right? You guys can see. Initially I wanted the counter to be 0, so it give the what do you say? The initial value as 0. So use effect, right? Use effect takes in two arguments. Okay. First is a function. Second के बारे में हम I'll tell you little bit in 2 minutes. Okay. First is function. Okay. तो इसके अंदर use effect खुद एक function लेता है, right? तो इसके अंदर I'll put a function. ठीक है. And inside this function we write the whatever the side effect code that we want to execute, right? Code to execute. ठीक है. So what I'll do, let me just console log use effect. Let's just see when it runs. Okay. So give me 1 second. Let me disable the strict mode, otherwise everything will come 2 times and it will be confused. Okay. So if I refresh, you can see when the page loads, we get a use effect. Are you guys seeing it? Seeing this? Yes or no? Can you guys see that it is getting loaded on the initial render? Yes. What I'll do is I'll do something else, right? I'll bring back the counter wala code and everything, right? Let me bring those back. Okay, this I brought. Now when I click on this 0 1, like when I try to increase this counter, right? Just check what happens. Can you guys see whenever I'm increasing it, the use effect is running again and again? Yes or no? Yes. Okay. Something is happening. Okay. Let us see what happens. You already know, right? You already know when state or prop changes, right? When state or prop changes for a component, that component re-renders. Component re-renders means it renders again. You guys know this already? Yes or no? Already this is taught to you in the previous classes. Yes. So when state or prop changes, the component re-renders. So whenever we are changing the state, right? See, whenever clicking on this button, what is happening? What is happening? Tell me. This counter state is getting changed, no? While it was 0, then it become 1, then it become 2. So whenever you're clicking on this button, the set counter function is running, which in turn changes the state, right? So whenever the state changes, our component re-renders, and whenever the component re-renders, the use effect runs. Okay. So one thing we came to know, that use effect runs on each render. ठीक है, each and every render. जितना बार भी रेंडर होगा हमारा कंपोनेंट, उतना बार ये रन होगा. आर यू गाइस क्लियर विद दिस? ठीक है, मैं इसको 1000 बार भी रन करूंगा, इट विल रन ईच टाइम. ओके, यस और नो? This have changed the state, right? If let's say there are some props which is coming and the prop also changed, the use effect will run. Yes or no, guys? Tell me in the chat. This is clear? Yes. ठीक है. But ऐसा भी हो सकता है कि we don't want that, right? Like let's say we want something to happen only once. ठीक है, जब initially जब पेज लोड हुआ ना, एक बार, बस वो एक ही बार रन होना चाहिए. ठीक है, आई डोंट वांट कि एवरी री रेंडर पे इट शुड रन. ओके, उसके लिए काम आता है द सेकंड आर्गुमेंट व्हिच इज एन एरे. ठीक है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे. ठीक है, इसका क्या क्या मतलब है हम समझेंगे, लेकिन एक you can understand that the second argument, right? This is the first argument which is the function. second argument कॉमा देके लिखेंगे, वो एक एरे है, राइट? अगर आप एरे को एम्प्टी पास करोगे, राइट? अगर आप एरे को एम्प्टी पास करोगे, डिपेंडेंसी एरे is empty. If you pass this, then what will happen? Use effect
रन्स ओनली वंस, ठीक है, ऑन दी फर्स्ट रेंडर, मतलब एक ही बार रन होगा, कब रन होगा वो, रन ओनली ऑन दी फर्स्ट रेंडर, राइट। लेट अस सी दिस, मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, एक बार यूज पे रन हुआ, इसको जितना बार भी मैं अभी इंक्रीज करूंगा, देखो ये बिल्कुल रन नहीं हो रहा है। कैन एवरीवन सी दिस? यस, ठीक है, एक बार भी रन नहीं हो रहा। तो हमने ये सीखा कि जो डिपेंडेंसी आ रहा है, अगर उसको एम्प्टी छोड़ देंगे तो वो इट विल रन ओनली ऑन द फर्स्ट रेंडर। और बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा था, एक सेकंड, डिफॉल्ट ये लाइक दिस इज द बिहेवियर, राइट, डिफॉल्ट लाइक विदाउट एनी एरे, विदाउट एनी एरे, ठीक है, अगर एरे को डालेंगे ही नहीं तो हम ये डालेंगे, ठीक है, दिस इज क्लियर। द थर्ड पॉइंट इज ये एरे के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, राइट। अब ये क्या लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिखता हूं, third point is we can put some variables in the array, in the dependency array, ठीक है। और क्या होता है, जब भी ये वेरिएबल चेंज होता है ना, अगर हम कुछ भी डालेंगे वो क्या बोलते हैं इसको, वो जो डिपेंडेंसी array के अंदर, then the use effect will run only when the variable changes, variables change, ठीक है। मतलब कोई सा भी मान लो हमने दो वेरिएबल रखा, अगर उनमें से कोई सा भी चेंज हुआ, देन ओनली द यूज इफेक्ट विल रन, ठीक है, प्लस दी फर्स्ट रेंडर, राइट, फर्स्ट रेंडर में हमेशा रन करेगा, प्लस फर्स्ट रेंडर। इज एवरीवन एबल टू सी? हम एक एग्जांपल देखेंगे, बट ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं? व्हाट आई एम टेलिंग इज, अगर हमने कुछ भी वेरिएबल रखा डिपेंडेंसी एरे में, राइट, अगर हमने कुछ भी वेरिएबल रखा डिपेंडेंसी एरे में, देन द यूज इफेक्ट विल रन ओनली व्हेन द वेरिएबल्स चेंज। अगर वो वेरिएबल्स में कुछ चेंजेस आया, ठीक है, अगर वो 1 थे तो 2 हो गए, या फिर सौम्य थे उसको कोई चेंज करके फंक्शन अप कर दिया, कुछ भी हुआ, लाइक एनीथिंग चेंजेस, इट विल रन अगेन, ठीक है, एंड वो फर्स्ट रेंडर पे अगेन रन होगा, फर्स्ट रेंडर पे तो रन होगा ही होगा। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? लेट मी नो इन द चैट। ओके, यस, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। मैं ना क्या करूंगा, और एक स्टेट बनाऊंगा, ठीक है, आपको एक क्लियर एग्जांपल देने के लिए। एक नेम सेट नेम करता हूं, ठीक है, और इसका इनिशियली इसका वैल्यू एम्प्टी, एक दिखाते हैं ये नेम क्या है एक्चुअली इधर, और एक इनपुट बनाते हैं। इनपुट को जब कोई, ये हमने कल डिस्कस किया था, राइट, वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी ऑन चेंज e set name e dot target dot value, ठीक है। अच्छा, इसको एक ब्रेक दे देते हैं, ठीक है। अभी तो नेम एम्प्टी है इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है ये, ठीक है। अब मैं इसमें जो भी एंटर करूंगा, राइट, व्हाट विल हैपन, इट विल बी शोन, राइट, व्हाटएवर आई टाइप हियर इट विल बी शोन। तो ये नेम को मैं अपडेट कर रहा हूं इधर से, काउंट को मैं अपडेट कर रहा हूं इधर से। इज एवरीवन एबल टू सी, लाइक अंडरस्टैंड द कोड व्हाट आई हैव रिटन टिल नाउ? यस और नो? नो? अच्छा, क्या क्या समझ में नहीं आया? नवरत्न, 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 ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? 48, there are 48 people, only 3 or 4 people are answering, so this is not good. अभी तो रात भी नहीं हुआ है, you are already tired. Be active guys. जब पूछ रहा हूँ कि समझ में आया कि नहीं, तो आप लोग अगर नहीं बोलोगे तो फिर बाद में बोलोगे कि समझ में नहीं आया, तो दिक्कत होगा ना। तो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, टेल मी, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, देन आल्सो टेल मी दिस। मैं लाइक आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस यूज इफेक्ट, लेकिन बस इतना बताओ कि ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं। लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस यस्टरडे मल्टीपल टाइम्स, राइट। दिस इज नथिंग, ये तो बस एक बटन है जिसको हम इंक्रीज कर रहे हैं काउंटर को, राइट। दिस इज जस्ट वी हैव अ नेम वेरिएबल, राइट, वी हैव अ नेम वेरिएबल, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज वी हैव इनपुट, and whenever I'm typing anything, it is changing the name, right? This is clear. And okay, so everyone is saying yes, okay. Now this console log dot use it like this, this will run only once, right, because it is an empty array, right.
सो अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ये एक ही बार रन होगा, और मैं जितना भी चेंज करूं स्टेट ये कुछ रन नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसको उड़ा दूं, मतलब इफ आई रिमूव द array, what will happen? Tell me, anyone can tell me what will happen? अगर मैं ये वाला क्लिक करूंगा क्या यूज इफेक्ट आएगा? यस और नो? इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन विल यूज इफेक्ट रन? ओके, लेट्स चेक। यस, रन हो रहा है। अगर मैं इधर कुछ टाइप करूंगा क्या यूज इफेक्ट रन होगा? यस और नो? इफ आई टाइप समथिंग हियर विल यूज इट रन? यस। व्हाई बिकॉज इधर भी तो स्टेट चेंज हो रहा है ना भाई। जब स्टेट चेंज होगा तब रीडेंडर होगा, और जब रीडेंडर होगा तब यूज इफेक्ट रन होगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, राइट। तो ये रन हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, राइट, मैं चाहता हूं कि जब काउंटर चेंज हो बस तभी रन हो। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, आई वांट कि जब काउंटर चेंज हो ना तभी रन हो। ये नेम से मेरे को कोई मतलब नहीं है। आई डोंट वांट दिस फंक्शन टू रन व्हेन नेम चेंजेस, राइट। व्हाट आई टोल्ड कि व्हेन काउंटर चेंजेस प्लीज रन इट, राइट, प्लीज रन दिस, बट व्हेन नेम चेंजेस डोंट रन इट। ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज इनसाइड दिस एरे, राइट, इनसाइड दिस एरे मैं डिपेंडेंसी एरे में वो काउंटर को डाल दूं। करेक्ट, समीर इज एब्सोल्युटली राइट। तो मैं क्या करूंगा, काउंटर को डाल दूंगा डिपेंडेंसी एरे में। मैं मतलब मैं ये बोल रहा हूँ यूज इफेक्ट को कि काउंटर आपका डिपेंडेंसी है, राइट। ये नेम या फिर और कोई वेरिएबल आपका डिपेंडेंसी नहीं है। प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। बस जब काउंटर चेंज होगा देन ओनली एग्जीक्यूट द फंक्शन, राइट। देन ओनली एग्जीक्यूट यूज इफेक्ट, अदरवाइज डोंट यूज एग्जीक्यूट, राइट। तो इसको चेक करते हैं। मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। एक बार तो होगा, राइट, एक बार तो होगा ही होगा। द फर्स्ट रेंडर इट विल बी रनिंग। अब क्या करेंगे हम, ये नेम को चेंज करते हैं। देखो मैं नेम को चेंज कर रहा हूँ, ये वाला को जितना भी चेंज कर रहा हूँ, यू कैन नॉट सी एनी यूज इफेक्ट। कैन यू जस्ट सी यूज इफेक्ट? नो, राइट। यस, यू गैस कैन सी, यस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 1 को क्लिक करेंगे, मतलब ये काउंटर को चेंज करेंगे। देखो अभी काउंटर को चेंज किया, इट इज गेटिंग चेंज्ड, राइट, इट इज गेटिंग चेंज्ड। अब क्या करते हैं, व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू डू द रिवर्स, राइट। आई एम टेलिंग दैट जब नेम चेंज होगा तब रन होना, ठीक है। जब नेम चेंज करूंगा मैं इधर तब रन होना। जब काउंटर चेंज होगा तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। लेट मी रिफ्रेश। देखो एक बार तो रन होगा यूज इफेक्ट, दिस इज क्लियर। आई विल चेंज द काउंटर, इट विल नॉट रन, okay, it will not execute. If I change it, see, if I'm changing the name, it is getting run. Is it clear? This concept is clear. Use effect, very important. See, I'm able to click this, not nothing is happening, right? तो तीन चीजें हैं, तीन, like there are three behaviors of use effect. एक तो है विदाउट एनी एरे, अगर आप कुछ भी नहीं डालोगे तो वो रन करेगा ईच एंड एवरी रेंडर पे, राइट, रन ऑन ईच एंड एवरी रेंडर। सेकंड पॉइंट इज डिपेंडेंसी एरे, राइट, सेकंड पॉइंट डिपेंडेंसी एरे। अगर आपने एम्प्टी डाल दिया उसको डिपेंडेंसी एरे को तो यूज इफेक्ट एक ही बार रन होगा फर्स्ट रेंडर पे। थर्ड पॉइंट इज अगर आपने डिपेंडेंसी एरे के अंदर कुछ डाला है, कुछ वेरिएबल्स डाला है, देन द यूज इफेक्ट विल ओनली रन जब वो वेरिएबल्स चेंज होंगे प्लस फर्स्ट रेंडर पे रन होगा, राइट। दीस आर द 3 points. Whoever is able to understand all the 3 points, just let me know in the chat ki it is clear. Okay, okay, ठीक है। अब क्या करेंगे, that is another thing in if you remember the previous, like when we were discussing the life cycle methods, we had something called component did unmount, right? Did you under component will unmount, sorry. We had something called, if you forgot that, I'll just write you component will unmount. लेकिन ये कब होता है, ये क्लास कंपोनेंट में होता है, राइट, फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं होता। component will unmount क्या करता है, अगर आपको कुछ कंपोनेंट जब माउंटिंग, मतलब जब डॉम से निकल रहा है, व्हेन कंपोनेंट एग्जिट्स फ्रॉम डॉम, जो डॉम से निकल रहा है, जस्ट बिफोर दैट दिस रन्स, राइट। अगर आपको कुछ क्लीन अप करना है, राइट, अगर आपने कुछ टाइमर्स वगैरह डाले हैं जो कि आपको क्लियर करना है, राइट, अगर आपको कुछ सेट इंटरवल्स क्लियर करना है, अगर आपको कुछ मेमोरी लीक्स को फिक्स करना है, कुछ क्लीन अप एक्शंस करते हैं, तो हम नॉर्मली कंपोनेंट डेड विल अनमाउंट के अंदर डालते हैं। सॉरी, स्पेलिंग गलत है मेरा, ठीक है। कंपोनेंट विल अनमाउंट के अंदर हम डालते हैं जब अनमाउंट हो रहा है, उसके जस्ट पहले, जब वो कंपोनेंट जब डॉम से एग्जिट कर रहा है तो उसके पहले। यू गाइस आर क्लियर विद दिस, राइट?
tell me if you guys like this one you are clear, then I'll tell the like how to do this in the functional component. This is clear. Component will unmount, we've already learned this. Hello. Yes, okay, this one is clear. So what I'll tell is in this use effect also, like in the functional components also, we have such something like that. Okay, so from the use effect, we can return a function. Okay, this is very important. We can return a function which acts as the cleanup function. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल काम करना है हम करेंगे, राइट, कंसोल लॉग करना है, जो भी करना है हम काम करेंगे, और एक क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक फंक्शन. ठीक है, वी विल रिटर्न ए फंक्शन फ्रॉम दिस, and inside this any cleanup thing that you want to do, right, cleanup stuff that you want to do, we can do, right. तो आपको जो भी काम आप component did component will unmount के अंदर कर रहे थे, we can do everything inside this acts as a component will unmount. Is everyone clear with this? ये कब रन होगा, it will run just when the component is about to exit from the DOM. ठीक है, clear, ठीक है. If you guys want, I can give you an example of this. इसको DOM से हटाना पड़ेगा. उसके लिए कैसे हटाएंगे इसको, index.js में कुछ करना पड़ेगा. इसका एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं, राइट, उसको हटाते हैं. ठीक है, हमें चाइल्ड कंपोनेंट आ रहा है, और मैं क्या चाहता हूँ, मतलब इसको हटाना है ना, तो एक कुछ करते हैं, डिस्प्ले चाइल्ड सेट डिस्प्ले चाइल्ड इक्वल टू यूज स्टेट ट्रू. अगर डिस्प्ले चाइल्ड ट्रू है तो ये दिखेगा. ठीक है, और एक हम इसके ऊपर बटन करेंगे. ठीक है, इसका काम होगा शो और हाइड चाइल्ड. ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो शो हाइड करेगा. ऑन क्लिक इक्वल टू सेट डिस्प्ले चाइल्ड टू नॉट डिस्प्ले चाइल्ड. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल. ये हमने कुछ नहीं किया. ठीक है, जो क्लीनअप वाला है ये इधर लिखते हैं. ठीक है, यूज इफेक्ट, ये फंक्शन होगा, इसके अंदर से आई रिटर्न अ फंक्शन, राइट, इसके अंदर से व्हाट आई टोल्ड आई रिटर्न अ फंक्शन. ठीक है, इधर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग क्लीनिंग अप चाइल्ड. ठीक है, क्लीनिंग अप चाइल्ड. ये कब रन होना चाहिए, ये कब रन होना चाहिए, जब चाइल्ड कंपोनेंट, राइट, व्हेन द चाइल्ड when the child component is going to unmount, right, when the child component is just exiting from the screen. Is everyone clear when it should run? इसका डेमो देखेंगे, लेकिन it should run when we are about to clean it up, जब child component ये स्क्रीन से निकलने वाला है उसके जस्ट पहले. yes or no guys? yes, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, कंसोल को मैं इस पे क्लिक करूंगा, राइट. देखो मैं जब भी इस पे क्लिक किया ये हाइड हो गया, राइट, ये हाइड हो गया. ये हाइड होने से जस्ट पहले वी गॉट दिस क्लीनिंग अप चाइल्ड, राइट. हाइड होने का मतलब क्या है, इट इज एग्जिटिंग फ्रॉम द DOM, इट इज गेटिंग अनमाउंटेड, राइट, द चाइल्ड कंपोनेंट गॉट अनमाउंटेड, तो इसीलिए ये वाला रन होगा. अब मैं इसको शो करूंगा, ठीक है, कुछ नहीं आएगा. अब मैं इसको फिर से हाइड करूंगा, इट इज गेटिंग हियर, राइट. तो व्हेनेवर इट इज एग्जिटिंग, जब वो निकलने वाला है तब ये एग्जीक्यूट होता है. इज एवरीवन क्लियर विद द एग्जांपल्स? यस, नो? यस, ठीक है, कूल. ठीक है, वी आल्सो लर्नड अबाउट दिस. ठीक है, तो यूज इफेक्ट का नॉर्मली ये चार यू नो यू हैव दिस फोर थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. ओके,
which you have to keep in your mind for the interviews and also while you use. Okay, we'll learn about the third hook, right? The third and the final hook, which is called the use ref. ठीक है, यूज रेफ. अब यूज रेफ को समझाने से पहले, राइट, लाइक यूज रेफ को समझने के लिए, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड लाइक एक तीर में दो निशाना हो जाएगा, राइट, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम इन अ सिंगल वन. वन इज कॉल्ड कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स. डू यू गाइस नो दिस? Yes or no? If I think no, but I'll anyways teach you. But just wanted to know if you know this. Okay, you don't know this. ठीक है, ठीक है. Okay, let me explain you what is this. Okay, मैं क्या करूंगा, ये चाइल्ड में से ये सब हटा दूंगा. ठीक है, क्या होता है नॉर्मली, कल हम एक फॉर्म बनाए थे, राइट, जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म. कैसे था वो? अभी के लिए मैं बस दो फील्ड्स इनपुट कर रहा हूँ. ठीक है, एक इनपुट है नेम के लिए, एक वो बनाते हैं, हेडिंग बनाते हैं. ठीक है, कोई भी फॉर्म है कुछ. ठीक है, ये फॉर्म में नेम है हमारा, और एक मान लो कुछ भी है. ठीक है, ईमेल. ठीक है, बस दो ही हमारे पास फील्ड्स है. तो हम कैसे कर रहे थे, किसको पता है? मैं हाउ विल आई डू दिस, लाइक हाउ विल आई वायर अप एवरीथिंग, टेल मी. मैं कैसे मतलब स्टेट में डालूंगा, लाइक हाउ विल आई डू दैट? फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट शुड आई डू? टेल मी गाइस, फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? यस, हम क्या करेंगे? नहीं, मेरे को बस एक ही आंसर मिला. आई वांट मल्टीपल आंसर्स. दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, लाइक व्हाई आर पीपल नॉट रेस्पॉन्डिंग? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बी एक्टिव इन द चैट गाइस. अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप अगर आंसर नहीं दोगे, मेरे को पता कैसे चलेगा? यस, समीर इज करेक्ट, आफरीन इज आल्सो करेक्ट. बताओ बताओ. Let me know in the chat guys. एक सेकंड. किसी को नहीं पता क्या ये, मतलब like is anyone not able to understand? Like I only got two answers, right? I only got two answers from Afrin and Samir, right? I am not able to, like, I will not proceed if, like, I will not get answers from Sailab, Rana, Jyoti, Alok, Sangram. Like, what are you guys doing? Manpreet, I'm telling कि like इससे simple question कुछ हो नहीं सकता. That I'm asking, how will you, like, मेरा first step क्या होना चाहिए? Yes, you state करेंगे, right? तो आप अगर अभी बोल पा रहे हो, जो मैं पूछ रहा हूँ, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? कि I don't want to take names, but when I'm asking, just tell me, right? ठीक है, you guys know, right? You already know. हम क्या करते थे? हम क्या करेंगे? name, set name, right? इसको use state और empty करेंगे. ठीक है, email को भी करेंगे, email इसको कैपिटल E. ठीक है, और इसमें वैल्यू. ठीक है, बस इतना ही नहीं करना है, हमको ये भी करना है, राइट? वैल्यू इक्वल टू नेम ऑन चेंज इक्वल टू ई सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. ठीक है, ये ऑन चेंज तो सेम रहेगा, इसमें वैल्यू इक्वल टू ईमेल हो जाएगा. ठीक है, अब हमारा वायर अप हो गया. एक बटन होगा, राइट, फॉर सबमिटिंग. for submitting, right? Now the submit button,
सबमिट बटन पर जब क्लिक करेंगे वी कैन सेंड आवर एपीआई कॉल और व्हाटएवर वी वांट, राइट? अभी के लिए व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू जस्ट शो द रिजल्ट ऑन द कंसोल, राइट? दिस वी हैव ऑलरेडी डन एक्सटेंसिवली यस्टरडे. console.log नेम और ईमेल, ठीक है. मैं इनपुट करूंगा सौम्या और ईमेल डालूंगा. अच्छा कुछ गलती कर दिया. हाँ ये सेट नेम नहीं होगा, ये सेट ईमेल होगा. नेम सौम्या, ईमेल करूंगा soumya@gmail.com, ठीक है. इफ आई क्लिक ऑन सबमिट आई कैन सी दैट, ठीक है, सही से आंसर आ रहा है, ठीक है. दिस जो हमने पढ़ा था, राइट, विच इज द कॉमन वे, राइट, जो कि मतलब नॉर्मली अगर आप करोगे तो आपको यही यू आर रिक्वायर्ड टू यूज दिस, ठीक है. दिस इज द कॉमन वे. इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट, राइट, जो वे अभी हम यूज कर रहे हैं, राइट. इट इज नोन एज कंट्रोल्ड कंपोनेंट. कंट्रोल्ड कंपोनेंट. अब इसको कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्यों बोल रहे हैं, राइट? वी आर कंट्रोलिंग the values, right, the values which is present in the inputs using state, right? हम state यूज कर रहे हैं, right? We are using use state. तो इसीलिए मैंने आपको पूछा था कि इसमें फर्स्ट चीज हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, स्टेट क्रिएट करते हैं, फिर स्टेट से हम इसको मैप करते हैं, राइट? वैल्यू इक्वल टू ईमेल, वैल्यू इक्वल टू नेम, राइट? ये स्टेट से हम मैप करते हैं, फिर हम ऑन चेंज डालते हैं, राइट? फिर हम ऑन चेंज डालते हैं, ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव. ओके, नाउ ये है कंट्रोल कंपोनेंट. क्यों? क्योंकि हम कंट्रोल कर रहे हैं रिएक्ट से, राइट? वी आर कंट्रोलिंग इट बाय रिएक्ट स्टेट, राइट, यूजिंग रिएक्ट. एक दूसरा वे भी है, ठीक है, इसको एग्जैक्टली करने के लिए, सेम चीज करने के लिए दूसरा वे जिसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, राइट? अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, ठीक है. अभी इसको देखते हैं, सेम चीज हम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में करेंगे. क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक. फंक्शन चाइल्ड, ठीक है. अभी के लिए एक डिव दिखा देते हैं बस, ठीक है. ये सब तो सेम रहेगा, मतलब मैं बस ये यूआई थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखना ना पड़े. तो मैं ये वाला चीज कॉपी कर लूंगा, ठीक है. लेकिन मेनी थिंग्स विल चेंज, राइट? दिस लेट मी ऑल रिमूव दिस, ठीक है. लेट मी रिमूव ऑल दिस, लेट मी रिमूव दिस, ठीक है. अभी हमारे पास बस ये नेम है और इनपुट है, मतलब these two things are there, right? We have not wired up anything. Submit करने पे कुछ नहीं होगा, right? Now how do we do this stuff in the uncontrolled component, right? How do we do this stuff in the uncontrolled component? Uncontrolled component में we use a hook. हाँ बच्चे बच्चे दूर में खेल रहे हैं यार, साइड में एक फील्ड है तो खेल रहे हैं. क्या कर सकते हैं, लेट मी क्लोज द विंडो. हाँ गिव मी 1 सेकंड. हाँ थोड़ा सा अभी कम आ रहा होगा आवाज, ठीक है. ठीक, अब क्या करेंगे. ओके, आफरीन इज आस्किंग व्हाई इज they are empty in, we have already set as null. हमने null में कहाँ सेट किया, we have not set it null, right? हमने इसको empty string में सेट किया है, ठीक है. ठीक है. सो अब क्या करेंगे हम, ये वाला चाइल्ड इसको करेंगे लेकिन अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में. व्हेन इन अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में, इन अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, राइट, व्हाट डू वी डू इन अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट? वी यूज समथिंग कॉल्ड ए रेफ, राइट? वी यूज रेफ. ओके, अब ये रेफ क्या है, राइट? ref creates a reference to the actual DOM element, right? इसका क्या मतलब है, देखो अभी हम react में लिखे हैं, right? इसको react में लिखे हैं, लेकिन इसका एक एक्चुअल DOM एलिमेंट बनता है ना, इसका एक एक्चुअल DOM एलिमेंट बनता है. मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलूंगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया तो छोटा करते हैं, राइट? मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलूंगा, यू कैन सी इन द इंस्पेक्ट एलिमेंट, राइट? दिस इज अ नेम, राइट? दिस इज एन इनपुट फील्ड, ये क्रिएट हुआ है. अब ये इनपुट ईमेल भी क्रिएट हुआ है. कैन यू गाइस सी द बटन भी क्रिएट हुआ है, सारा कुछ क्रिएट हुआ है. यस और नो? यस. तो रेफ क्या करता है, हमको ना डायरेक्ट एक रेफरेंस दे देता है ये वाले में, यू नो, टू द डॉम एलिमेंट. तो डॉम एलिमेंट व्हिच इज क्रिएटेड, इट डायरेक्टली गिव्स अस अ रेफरेंस टू दैट. तो हम क्या कर सकते हैं, डॉम एलिमेंट से सब करेंगे, राइट? विल नॉट यूज स्टेट, विल नॉट यूज एनीथिंग, हम डॉम एलिमेंट से फेच करेंगे. इफ यू रिमेंबर, यू आर डूइंग ऑल दिस यूजिंग जावा. जब आप जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर रहे थे, व्हेन यू आर डूइंग द डॉम मैनिपुलेशन, हम कैसे कर रहे थे, आप कर रहे थे जो इनपुट, यू नो, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, यू आर फाइंडिंग द इनपुट, राइट? कॉन्स्ट इनपुट, मान लो नेम इनपुट है, ठीक है.
तो इसको इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसको इनपुट को निकाल रहे थे पहले, ठीक है, या फिर क्वेरी सिलेक्टर जो भी करके, फिर अगर आपको इनपुट का वैल्यू चाहिए होता था आप इनपुट डॉट वैल्यू कर रहे थे, राइट? डू यू गाइस रिमेंबर दिस? यस और नो? यस, उसी टाइप का, राइट, विल डू द सेम टाइप ऑफ थिंग इन दिस, ओके, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। पहले हमको रेफ यूज करना, आई टोल्ड यू, सो विल यूज अ हुक कॉल्ड यूज रेफ, ठीक है? आई इंपोर्टेड a hook called useRef, and this is given to us by who? It is given to us by React, right? So what I'll do here, I'll create a ref, ठीक है? I'll create two refs actually. एक रेफरेंस होगा हमारा नेम को, ठीक है? हमको एक्चुअली करना क्या है, देखो देखो, इसको इसको हटाने से, मतलब इसको बताने से पहले हमको क्या करना है, हमको क्या ये फॉर्म से हमको क्या लेना देना है, हमको चाहिए कि ये बंदे ने जो टाइप किया है नेम में और ईमेल में, व्हेनेवर यू क्लिक ऑन सबमिट, आई वांट टू गेट दोस वैल्यू, दैट इज इट, राइट? उसके बाद मैं उसके साथ एपीआई कॉल करूं, जो भी मर्जी करूं, लेकिन हमको बस ये चाहिए, मतलब ये एप्लीकेशन जो हमारा फ्रंट एंड है उससे चाहिए कि बंदे ने जो टाइप किया अपना नेम और ईमेल जो भी फॉर्म में टाइप किया है, प्लीज गिव मी दैट, ठीक है? तो इसको स्टोर करने के लिए हमको इन दोनों का वैल्यू चाहिए, राइट? तो पहला इसका रेफरेंस लेंगे, राइट? तो एक तो लेंगे हम नेम रेफरेंस, ठीक है, इक्वल टू यूज रेफ, ठीक है, एक करेंगे नेम रेफरेंस क्रिएट और एक करेंगे ईमेल रेफरेंस, ठीक है, दो रेफरेंस क्रिएट हो गया, लेकिन ये कुछ लिंक नहीं हुआ है, इसको लिंक कैसे करेंगे? इनपुट, वेरी इंपॉर्टेंट, सी, राइट, इनपुट रेफ इक्वल टू नेम रेफ, ठीक है, इसको नेम रेफ से कर देंगे, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, और इसको ईमेल रेफ से कर देंगे, ठीक है, ईमेल रेफ। अब क्या होगा, हम जो भी टाइप करेंगे, राइट, इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस नेम रेफ, लाइक दिस इज वेरी वेरी इजी, ठीक है? अब अगर हमको कुछ वैल्यू चाहिए इससे, क्या करूंगा, console डॉट लॉग नेम रेफ डॉट करेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट करेंट में सारा कुछ स्टोर होता है, डॉट वैल्यू, ठीक है, ये नेम का वैल्यू देगा। अगर अगर मेरे को ईमेल वाले का चाहिए तो ईमेल रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू, ठीक है? तो मैं अगर इधर हेलो लिखूंगा और इधर कुछ भी लिखूंगा, ठीक है, इफ आई क्लिक ऑन सबमिट, आप देख रहे हो आई एम गेटिंग द वैल्यू, कैन यू गाइस सी? We did not use state, right? This code is little bit very similar, right? Very very similar, but इसमें हमने क्या किया, हमने दो refs create किए, right? We created two references and उससे हम value निकाले, right? Just like we used to do in the JavaScript. मैं क्या कर सकता हूँ, I can like जैसे हम create कर रहे थे ना, जो एक बटन का भी रेफरेंस बना सकते हैं, right? ये बटन का रेफरेंस बना सकते हैं, उसका हाइट विड्थ जो नॉर्मली हम करते हैं DOM मैनिपुलेशन में, right? We try to find the height, the width, right? अगर इसका कुछ आईडी है, मान लो मैं इसे नेम का कुछ आईडी देता हूँ, आईडी इक्वल टू nm, राइट? तो अगर हमको उसका कुछ आईडी होगा, नेम रेफ डॉट करेंट डॉट आईडी, देखो इसका आईडी भी आ रहा है, जैसे हम नॉर्मली एक्सेस कर रहे थे, राइट? जो उसको इन द जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड, इन द DOM मैनिपुलेशन हम कैसे कर रहे थे, उसको पहले निकालेंगे, राइट? विल गेट द यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर और यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड उससे हम वी विल यूज द आईडी डॉट क्लास डॉट वैल्यू, राइट, डॉट स्टाइल्स, ठीक है? आप इधर से डायरेक्ट कर सकते हो, विल गेट द रेफरेंस एंड विल यूज द रेफरेंस टू गेट द वैल्यू। Is everyone clear with this? Yes, right? So this is the uncontrolled component, right? So in controlled component we use React, right? We use React का features, इसमें हमने कुछ React का features हमने कुछ use नहीं किया, बस userref use किया है, right? Apart from that we have not used state or anything, right? इसमें क्या होता है, in the control component we are controlling the values of the inputs using the state, okay, using the React state. Here we are using a reference to the actual reference का मतलब ref होता है, right? So we are using a ref or reference to the actual input and we are getting the values from the reference itself, right? We are getting the values from the reference itself, ठीक है? So so how is this uncontrolled? I did not get it. इसी को uncontrolled component बोलते हैं, right? There are two types of components, uncontrolled और controlled. इसको controlled बोलते हैं, इसको uncontrolled, इसका नाम है, right? This is the name of it. So sir, what we have to use, which one is better? ऐसा कुछ नहीं है, right? Like you can use anything, but normally when people are telling that in React we have to create a form, we have to use the control component normally, right? If it is mentioned specifically, use the ref and create it, use this, okay? Otherwise, if someone tells you to create a form, you have to do this, right? Like same ही answer निकलेगा, but if you're using React, we should use all the React features, right? You should use use state, you do the on change method, it will be like, इधर क्या कर रहे हैं, देखो इधर हम क्या कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड क्यों बोलते हैं इसको, देखो इसको अनकंट्रोल्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, राइट? ये बंदा अपना टाइप कर रहा है, ईमेल अपना टाइप कर रहा है और हम सबमिट कर रहे हैं, हमको बस मिल रहा है, राइट? वी आर जस्ट गेटिंग इट,
हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इधर हम उसको स्टेट में स्टोर कर रहे हैं, राइट, उसका वैल्यू सेट कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द स्टेट, राइट, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। इधर हम बस उस जो भी बंदे ने टाइप किया हम बस वो ले रहे हैं, राइट, वी आर जस्ट पैसिवली गेटिंग इट, वी आर नॉट कंट्रोलिंग इट। ठीक है, तो यू कैन यूज एनीथिंग, बोथ ऑफ देम आर एफिशिएंट, बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग ओनली, but if someone asks you to create it, you use this. But it is very important for you to understand both of these methods, right? Both of these methods you have to understand. Is it clear, guys? Yes. तो ये जानने के बाद you already know like how we use the useref, right? आपने useref भी समझ लिया, right? You have learnt about this useref, right? Uncontrolled component आपने पढ़ लिया and you have already learnt about useref. ठीक है, cool. ठीक है, अब क्या करेंगे, what I'll do is you only have I think 15 or some minutes. Okay, what I'll do is we'll take a small 5-minute break. ठीक है, उसके बाद we'll continue. We are back. So one last thing that we want to discuss today is something called React router. ठीक है, React router. तो रिएक्ट राउटर एक लाइब्रेरी है, राइट, ये रिएक्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है, राइट, यू शुड बी वेरी क्लियर कि रिएक्ट क्या था, हमने जो फर्स्ट में पढ़ा था, रिएक्ट इज जस्ट लाइब्रेरी, राइट। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, यू जस्ट गेट दी थिंग्स दैट इट इज रिक्वायर्ड फॉर, राइट। फॉर एग्जांपल एंगुलर में उसमें राउटिंग वाउटिंग सब सारा कुछ है, बिकॉज इट इज अ फ्रेमवर्क, राइट, उसमें सारा कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट इन रिएक्ट एज इट इज अ लाइब्रेरी, उसमें हमारा राउटिंग एंड अदर स्टफ आर नॉट इंक्लूडेड, राइट। सो हमको दूसरे पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, राइट। सो वी हैव टू इंस्टॉल समथिंग कॉल्ड रिएक्ट राउटर। ये रिएक्ट वालों ने नहीं बनाए, ये दूसरे बंदों ने बनाया है, राइट। सो वी हैव टू इंस्टॉल इट, राइट। हाउ डू वी इंस्टॉल इट? install it using npm install, just like any other component, right? React router DOM, any other package how you install, you do like this. ठीक है, ये stack bullets में मेरे को बस इधर सर्च करना होता है and will get installed. ठीक है, इसको एंटर करूंगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, now how will you check it is installed or not? You go to package.json or it has come, right, version 6.7.0. ठीक है, now how do we go for it? So what is React, like how do we, why do we need router first of all, right? Why do we need router? ये जो हमारा सारा ऐप है, राइट, इट इज प्रेजेंट इन अ सिंगल पेज, राइट, ऑल इज प्रेजेंट इन अ सिंगल पेज। बट नॉर्मली पेजेस ऐसा काम, नॉर्मली वेबसाइट ऐसा काम थोड़ी करते हैं, ऐसा काम नहीं करता, राइट। नो, लेट्स से आई एम ऑन द गूगल होम पेज, आई एम ऑन द होम पेज, तो होम पेज हमारा स्लैश पे होगा, राइट। लेट्स से वी वांट टू क्रिएट अ लॉगिन पेज, और लॉगिन पेज हमने स्लैश लॉगिन पे रखना चाहते हैं, रजिस्टर एक होना चाहिए, ठीक है, हम रजिस्टर स्लैश रजिस्टर पे रखेंगे, राइट। ऐसा हजारों पेजेस हम इफ यू वांट टू मेक, यू कैन मेक। नॉर्मली ऐसा होता है, राइट, वी डोंट हैव एवरीथिंग ऑन अ सिंगल पेज, तो इसीलिए हमको राउटिंग चाहिए होता है। एंड वन ऑफ द राउटर्स इज रिएक्ट राउटर। ऐसे बहुत सारे राउटर्स है, राइट, बहुत सारे राउटर्स है, आपको कुछ भी यू कैन यूज एनी राउटर। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा देखते हैं कि जो कि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जस्ट चेकिंग, ठीक है, हम क्या करेंगे, index.js में चलेंगे, ठीक है, इधर, या फिर app.js में ही कर सकते हैं। app.js में विल इंपोर्ट दिस टू, राइट। ये दो चीज क्या है, विल क्रिएट ब्राउजर राउटर और राउटर प्रोवाइडर, राइट, दिस टू थिंग्स आर देयर। ठीक है, then we'll create a router, right, we'll create a router, so we'll create it here, and हम क्या बोल रहे हैं कि स्लैश में ये दिखाओ हेलो वर्ल्ड, राइट, स्लैश में ये दिखाओ। और इसको मैं अभी कमेंट आउट कर दूंगा क्योंकि हम तो अभी ये नहीं दिखा रहे, राइट, कमेंट आउट कर दूंगा। देन हियर व्हाट विल डू, ये राउटर प्रोवाइडर को स्टोर करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो अभी स्लैश में हूं, अभी मतलब स्लैश मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्लैश में हूं अभी, तो हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। मैं अभी मल्टीपल राउट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। मान लो मैं चाहता हूँ कि लॉगिन पे, ठीक है, ये कुछ और दिखा है, राइट, ये दिखा है कि आई एम एट लॉगिन, ठीक है, ये दिखा है। तो मैं ये स्लैश लॉगिन पे अगर जाऊंगा मैं अभी,
स्लैश लॉगिन दिखाएगा आई एम एट लॉगिन, राइट। ये बस मतलब नॉर्मली लाइक इट इज नॉट दैट वी कैन ओनली राइट HTML, राइट, वी कैन एग्जीक्यूट आवर लाइक वी कैन शो आवर कंपोनेंट्स आल्सो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इधर ये चाइल्ड कंपोनेंट दिखाए, ठीक है, जब मैं लॉगिन पे हूँ वो चाइल्ड कंपोनेंट दिखाए। देखो अभी मैं लॉगिन पे हूँ, ये बस चाइल्ड कंपोनेंट दिखा रहा है। चाइल्ड कंपोनेंट क्या है? चाइल्ड कंपोनेंट इज आवर फॉर्म, right? So it is showing us the form. Can everyone see this? And it will work perfectly. It will work perfectly. There will be no issues. ठीक है। अभी अगर हम बैक आएंगे हमारे स्लैश पे, राइट, विल ओनली गेट दी हेलो वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले किया है। Are you guys getting the gist of how the router works? Yes or no? Yes. One very important thing क्या होता है कि what it may happen कि you want to go from one page to another, right? आप हमेशा you don't want to like type on search login, right? Normally websites में क्या होता है, ऐसा links होता है, right? Like this is a website, इसमें links काफी है, right? When I click on this link, it will go to some other page. So उसके लिए हम क्या करते हैं, we like normally we use A, right? But if you are using React router and you want to use if you want to move between the routes, you can use the link component, right? तो एक link component होता है. So let me search for it. Yes, this is the link component. So we'll import this link component from the React router DOM. So from here we'll just add it here. ठीक है, लिंक कॉम्पोनेंट आ गया। अब मेरे को अगर हेलो वर्ल्ड इसके नीचे जस्ट आई विल क्रिएट अ लिंक और इसमें मैं लिखूंगा गो टू लॉगिन, राइट। इस पे क्लिक करने पे आई शुड बी एबल टू गो टू द लॉगिन पेज डायरेक्टली, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम href नहीं डालते हैं, वी यूज टू, राइट। टू कहाँ जाना है आपको, मतलब href ही है, ठीक है, स्लैश लॉगिन, ठीक है। इसका है ये है सिंटैक्स, मतलब आपको जहां भी जाना है आप उसका लिंक दोगे, राइट। तो मैं इसमें अगर क्लिक करूंगा, see it has just jumped taken me to the login page. The same thing I can add it here, right? I can add it here. I can say key link go back to home page, right? I can write like this, right? And if I click on it, I want I should go back to the home page. So what I'll do, I'll put slash. When someone will click on it, I'll go back to the home page. If I click on it, I'll go back to here. You can see the one advantage of this React, right? Like this is a single page application. ये सारा कुछ एक सिंगल पेज एप्लीकेशन ही है। आपको कुछ रीलोड दिख रहा है क्या? इट इज सो फास्ट, राइट। नॉर्मली क्या होता है, रीलोड लोड होता है, फिर थोड़ा वेट करना पड़ता है। इट इज सो फास्ट, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन इट, इट्स जस्ट गोइंग सो फास्ट। और ऊपर यूआरएल भी चेंज हो रहा है। कैन यू गाइस सी? यस और नो? इट इज सो fast, right? There is no reloading, right? तो इस सिंगल पेज एप्लीकेशंस का यही फायदा होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट एंड ऑल दिस, दिस इज द एडवांटेज, राइट। अगर आप दूसरा कोई वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, जैसे कि मतलब कोई भी वेबसाइट, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कुछ चेंज करूं, ठीक है, मैं अभी इस पेज में हूं, देखना, इस पे क्लिक करूंगा, देखो पूरा पेज लोड हुआ, ये भी लोड खत्म भी नहीं हुआ है, राइट। लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग, राइट। इसमें मैं क्लिक करूंगा, सी द एंटायर पेज इज लोडिंग, अभी भी लोड नहीं हुआ है, राइट। देखो लोड नहीं हुआ है, बट इन दिस द एडवांटेज इज इट इज सो फास्ट, इट इज वेरी फास्ट एंड देयर इज नो रीलोडिंग, देयर इज नो फुल पेज रीलोड, इट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस लिंक टैग आल्सो, राइट। नाउ दिस अगर आपको इफ यू वांट टू अगर मेरे को गूगल पे किसी को सेंड करना है, राइट, अभी तो हमने मान लो ये फॉर्म में, इफ आई वांट दैट आई वांट टू क्रिएट अ लिंक, इसमें अगर मैं क्लिक करूंगा इट शुड गो टू गूगल, राइट। गूगल एनी एक्सटर्नल पेज इफ यू वांट टू सेंड, राइट, अगर एक एक्सटर्नल पेज पे किसी को सेंड करना है व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ योर वेबसाइट, तो आप नॉर्मल ए टैग यूज करोगे, राइट। यू विल यूज अ नॉर्मल ए टैग, सेंड टू गूगल, राइट। सेंड टू गूगल अगर आपको करना है तो आप नॉर्मल एक href इक्वल टू गूगल का लिंक दोगे, राइट। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मतलब ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा ब्राउजर का सेटिंग्स ऐसा है, हाँ, इस पे क्लिक करोगे तो ये गूगल ओपन हो जाएगा, राइट। इट ओपन द गूगल, ठीक है। ये इसका दिमाग खराब हो गया, हाँ, ठीक है। यू कैन क्लिक ऑन इट एंड यू कैन गो टू गूगल, राइट, इफ यू यूज द ahref टैग। अगर आपको इंटरनल लिंक्स करना है, इफ यू वांट टू send your users to somewhere in your page or in your application, then you use the link tag which is coming from where? Is coming from the React Router DOM. If you want to use if you want to send the user to some place which is not in your website, an external website, you use the a tag, right, normal a tag.
So what I'll do is I'll share the code. Let me copy the code. React Auto DOM भी हमने cover कर लिया. Version 6, right? वर्जन 6 मेरे को कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वर्जन 6 है और आपको पैकेज और जेसन में दिख जाएगा उसका, राइट? 6.7 पॉइंट समथिंग है, तो 6 वर्जन 6 है. ठीक है, इसका लिंक दे देता हूँ कोड का और इसका. ठीक है, दिस इज द नोट्स प्लस कोड लिंक. ठीक है, tell me if you're able to access this, then yeah, we can end this session. While you're trying to access, tell me ki if this class was helpful and you could understand. Accessible, right? Okay. ठीक है, did you guys understand this? How did you like this session? Or okay, thank you Manpreet. Okay, thank you everyone.